رقص عشق ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گا. عاصم جو درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، ہانیہ کو یونی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوتے دیکھ کر فوراً سے پاس آ کر بولا، ہیلو عاصم بھائی. ہانی عاصم کو دیکھ کر بولی، کیسی ہو ہانیہ؟ عاصم ہانی کے ساتھ چلتا ہوا بولا، بالکل ٹھیک، آپ بتائیں. ہانی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں. میں نے سنا ہے آپ نے شادی کر لی ہے. عاصم اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوا بولا، جی عاصم بھائی، آپ نے ٹھیک سنا ہے. ہانی اپنی کلاس کی طرف ٹرن لیتے ہوئے بولی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. عاصم دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولے، شکریہ آپ کا. ہانی مسکرا کر بولی، میرے لیے بھی دعا کرنا. عاصم نیا کھیل کھیلتا ہوا بولا جس کی اس نے اور فرور نے پلاننگ کی. کیا مطلب عاصم بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ ہانی عاصم کی دعا والی بات پر پریشان ہوتے ہوئے بولی، اب تم سے کیا چھپاؤں، میں فرور کو پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بات اس کو نہیں پتا. یہ بات صرف میں نے تمہیں بتائی. تم یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا، کیونکہ میں ابھی اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ فرور کی فیملی سے ملے گی. تمہیں اسی لیے بتائی ہے. تم فرور سے ویسے ہی پوچھنا میں اس کو کیسا لگتا ہوں. عاصم نے بہت سمجھداری سے بات کی، جس سے ہانے کو شک نہ ہو کہ وہ کسی گیم کا حصہ بننے والی ہے. عاصم سدا کا لالچی انسان تھا، جس کو فرور نے پیسے دیے کہ ہانے کو شازل کی زندگی سے نکالنا ہے. جی میں آپ کی مدد ضرور کروں گی، لیکن آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو جلدی بتانا پڑے گا. ہانی اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی، ہانی میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے کرے. میں فروا کے لیے اپنی فیملی سے بھی لڑ جاؤں گا. بس فروا راضی ہو اور مجھے یقین ہے آپ میری مدد کریں گے. ہانیہ عاصم ہانے کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا کر بولا، جی عاصم بھائی، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. ہانیہ صدا کی معصوم فوراً سے تیار ہو گئی مدد کے لیے. ٹھیک، میں پھر آپ کو رات میں کال کروں گا. عاصم اپنی پاکٹ سے فون نکالتا ہوا بولا، رات میں کال کیا مطلب؟ ہانیہ رات کو کال کرنے والی بات پر گھبرا کر بولی، ہانیہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا. بس فروا کی بات کرنے کے لیے آپ کا نمبر چاہیے. میں اس سے ساری بات نکاح کے بعد کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ کا نمبر چاہیے. عاصم یہ بات بھول گیا تھا، جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں نا تو اپنی باری کا بھی انتظار کرنا چاہیے. اوہ اچھا ٹھیک ہے، آپ لکھیں. ہانیہ اپنا نمبر دینے کے لیے فوراً تیار ہو گئی، اور یہی اس کی غلطی تھی. ہر لڑکی کی آواز میں اتنا روب ہونا چاہیے. کوئی نامحرم بات کرنے سے پہلے 100 بار نہیں تو ایک بار ضرور سوچے. آپ بے فکر رہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو زیادہ تنگ نہ کروں. اس سے زیادہ تنگ کر سکوں یہ بات اپنے دل میں بولا. جی چلے، میری کلاس سٹارٹ ہو گئی، میں چلتی ہوں. ہانی نے کلاس کی طرف اشارہ کیا جہاں پر سر نے لیکچر سٹارٹ کر دیا تھا. اوکے جی، آپ جائیں. عاصم اس کو راستہ دیتے ہوئے بولا، کہاں ہے وہ لوگ؟ یزدان جو بھی پولیس اسٹیشن آیا تھا ڈی ایس پی فراز کے آفس میں انٹر ہوتے ہوئے بولا. یزدان آرام سے بیٹا، ریلیکس. آریان صاحب یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، شکیل جاؤ ان مجرموں کو لے کر آؤ. ڈی ایس پی فراز اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بولے، یس سر. شکیل بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا. یزدان پہلے آرام سے بیٹھو اور میری بات سنو. فراز صاحب یزدان کو بیٹھنے کا بولے جو اس وقت جذباتی ہوا تھا. فراز تم پلیز یہ بتاؤ انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ یہ رابری نہیں تھی، کیونکہ وہ کچھ لے کر نہیں گئے. یزدان چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا، یہ مرڈر کیس تھا، رابری نہیں. بٹ ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ انہوں نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا ہے. فراز صاحب اس کو سچ بتاتے ہوئے بولے، السلام علیکم. ابھی یزدان کچھ اور پوچھتا شازل نے سلام کیا. وعلیکم السلام، آؤ شازل بیٹھو. فراز نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر شازل سے گلے ملتے ہوئے بولا. فراز اور شازل دونوں یونیورسٹی فیلو تھے، اسی لیے عروب کا کیس جلدی سالو ہو گیا تھا. اتنی دیر میں شکیل ٹیپو اور اس کے گینگ کو لے کر آ گئے. بتاؤ تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کس نے بولا تھا؟ اس دفعہ چھوٹ نہیں چلے گا ٹیپو صاحب. فراز ٹیپو کو گردن سے دبوچتے ہوئے بولا، میں سچ بول رہا ہوں، مجھے یہ کام کسی نے کرنے کے لیے نہیں کہا. ہم بس ڈرا دھمکا کر چیزیں لوٹنا چاہتے تھے اور وہ سب خود ہو گیا. ٹیپو جس کا مار کھا کھا کر برا حال کر دیا تھا، لیکن پھر بھی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں. تمہیں جان سے مار دوں گا. میری بیوی مر گئی، تم کہہ رہے ہو بس ڈرا دھمکا رہے تھے. یزدان جو کب سے تیش بھری نگاہوں سے ٹیپو کو دیکھ رہا تھا، اس کی بکواس سن کر رہا نہ گیا تو اس کے چہرے پر زوردار موقع مارتا ہوا بولا، یزدان رک جاؤ، کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ شازل یزدان کو پکڑتا ہوا بولا، نہیں، آج میں اس کو جان سے مار دوں گا. شازل تم چھوڑو مجھے. یزدان اس ٹائم فل غصے میں تھا. اس کا دل کر رہا تھا یہ خود مر جائے یا ٹیپو کو مار دے. یزدان تم قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، چھوڑ دو اس کو. فراز یزدان کو پیچھے کرتے ہوئے بولا جس نے 2 منٹ میں ٹیپو کی حالت بگاڑ دی تھی. بیٹا یزدان، یہ سب کیا ہے؟ چھوڑو اس کو. فراز ہینڈل کر رہا ہے کیس کو، یہاں تک ہو گیا، آگے بھی ہو جائے گا.
सिकंदर साहब यजदान को अपने गले लगा कर बोले और यजदान की हालत समझ रहे थे। वो किस कैफियत से गुजर रहा है। बाबा, सब्र नहीं हो रहा, क्या करूं, मेरी हालत देखिए, क्या मैं काबिल रहम नहीं हूँ। बाबा, मैं उसके बगैर जी रहा हूँ जिसको खोने का तसव्वुर ही नहीं किया था। बाबा, उन्होंने एक बच्चे से उसकी माँ छीनी, मैं कैसे इनको कानून के हवाले कर दूं, जिन्होंने मेरी बीवी को मारा है। यजदान सिकंदर साहब के गले लगता हुआ बोला, यजदान हौसला रखो, से सब ठीक हो जाएगा। शकील, इन सबको लॉकअप में डालो और जरा अच्छे से मेहमान नवाजी करो, ये अपना मुंह लाजमी खोलेंगे। फराज यजदान को हौसला देता हुआ बोला। जी सर, शकील कहते साथ ही टीपू और उसके गैंग को ले गया। शाहजलू, यजदान फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, अभी आप सब घर जाएं, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं इत्तला कर दूंगा। फराज ने अभी सबको घर भेजना मुनासिब समझा, क्योंकि यजदान की हालत देखकर लग रहा था वो ठीक नहीं है। ओके, फिर हम चलते हैं, प्लीज अगर कुछ पता चले तो बताना। शाजिल चेयर से खड़ा होकर बोला, जरूर, मैं अपडेट करता रहूंगा। फराज भी अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। आलियान साहब अलविदाई कलमात कहते साथ ही बाहर की तरफ रवाना हो गए। यजदान, तुम ऐसा करो, घर चले जाओ, मैं बाबा और चाचू ऑफिस चले जाते हैं, तुम घर जाकर रेस्ट करो। शाजिल जो अभी पार्किंग एरिया में आया था, यजदान को अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देख कर बोला, बेटा शाजिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप घर जाओ, रेस्ट करो ताकि आप फ्रेश फील करें। अलियान साहब यजदान के पास जाकर बोले, जो अपनी गाड़ी के बोनट के साथ टेक लगाकर खड़ा। जी ताया जान। यजदान ने उनकी बात मानने में बेहतरी समझी, वो खुद भी डाउन फील कर रहा था। चले बाबा, हम चलते हैं, फिर 12 बजने वाले, मुझे 2 बजे हानि को भी पिक करना है यूनी से। शाजिल घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, ओके, फिर हम चलते हैं यजदान, ध्यान से घर जाना बेटा। सिकंदर साहब गाड़ी में बैठते हुए बोले, ओके बाबा। यजदान कहते साथ अपनी गाड़ी में बैठ गए। कौन है जिसको तकलीफ हो रही है, सोने भी नहीं देते, दफा हो जाओ। बिलाल, जो सारी रात अय्याशी करके सुबह फजर के वक्त सोया था, 12 बजे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनकर बिलबिला उठा। साहब, नीचे आपके पिए साहब आए, वो कह रहे हैं उन्होंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। खान बाबा ने दरवाजे के बाहर से बता दिया, क्योंकि शम्स काफ़ी देर से बिलाल का इंतजार कर रहा था। वो यहाँ क्या कर रहा है खान बाबा, आपने उससे पूछा नहीं? बिलाल ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। जी, तकरीबन 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले अकरम भी आया था आपको जगाने के लिए, लेकिन आप नहीं जागे। खान बाबा सारी बात बताते हुए बोले, ठीक है, आप बाबा के पास जाएं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बिलाल कहते साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शम्स, सब खैरियत, तुम यहाँ? बिलाल ड्राइंग रूम में आकर शम्स से मिलता हुआ बोला, सर बुरी खबर है। शम्स खड़ा होकर परेशानी से बोला। शम्स बिलाल का राइट हैंड था। क्या बुरी खबर है? लंदन वाला प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया क्या? लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिलाल को लगा शायद प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। सर, अगर ये खबर होती तो शायद आप बर्दाश्त कर लेते, लेकिन बात कुछ और है। शम्स सामने टेबल से पानी का ग्लास उठाता हुआ बोला, शम्स, क्यों पहेली बना रहे हो, जो बात है वो बताओ। अब की बार बिलाल गुस्से में बोला, सर, टीपू और उसका गैंग इस वक्त पुलिस कस्टडी के हवाले है, अरूप कत्ल केस के सिलसिले में। शम्स ने बोलते साथ पानी का ग्लास बिलाल के आगे किया, क्योंकि अब बिलाल को पानी की ही जरूरत पड़नी थी। ऐसा कैसे हो सकता है शम्स, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, टीपू ने कहा था वो आज तक नहीं पकड़ा गया, तो अब कैसे मुमकिन है? बिलाल चीख कर बोला, पानी का ग्लास उठा कर फेंक, आखिर उसका प्लान कैसे फेल हो सकता था? सर, एक और बुरी खबर है आपके लिए, शम्स सोफे पर बैठता हुआ बोला। सर, आपकी बहन यशफा को सुल्तान ने तलाक दी थी, उसके बाद वो आपके पास भी आई थी मदद के लिए, लेकिन आपने नहीं की, और अब यजदान के घर पर है। शम्स यशफा के हवाले से बात करता हुआ बोला, यशफा यजदान के घर क्यों है और किस हैसियत से रह रही है? बिलाल अजब कश्मकश में था। आखिर यशफा और यजदान एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते थे? सर, यशफा मैम इस वक्त यजदान के घर पर उनकी बीवी की हैसियत से रह रही है। शम्स ने बहुत तहम्मुल से बात बताई, क्योंकि ये बात बिलाल को हजम नहीं होने वाली थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता शम्स? बस ये नहीं होना चाहिए। काश जब यशफा मेरे से मदद लेने आई थी मैं कर देता, काश। बिलाल वो वक्त याद करता हुआ बोला जब यशफा को अपने भाई की जरूरत थी, और बिलाल ने साफ इनकार कर दिया और घर से निकाल दिया था। उसने अपनी भांजी का भी नहीं सोचा। बिलाल जानता था यशफा को तलाक दे दी है सुल्तान ने। सुल्तान यशफा का शौहर था, जिसने यशफा को एक बिजनेस डील के जरिए निकाह किया था। अकबर साहब को उस वक्त पैसों की जरूरत थी, बिजनेस लॉस में जा रहा था। उस वक्त सुल्तान इनको किसी फरिश्ते से कम न लगा। सुल्तान ने एक शर्त पर बिजनेस डील के लिए माना था कि उसका निकाह यशफा से करवाया जाए। यशवा उस वक्त 16 साल की थी जब उसके अपने बाप और भाई दोनों ने मिलकर एक डील के पीछे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अकबर साहब को बेटियां वैसे ही नहीं पसंद थी, वो बोझ समझते थे यशवा को। जब सुल्तान की बात सुनी तो 1 मिनट जाया के बगैर फौरन हाँ गई, माजी
उठो, आज तुम्हारा निकाह है। अकबर साहब जो यशवा के कमरे में आए थे उसके सामने लाल जोड़ा फेंकते हुए बोले, मेरा निकाह बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? यशवा सदमे की कैफियत में बोली, अब क्या सितम करने वाली है उसकी जिंदगी उसके साथ। हाँ सुल्ताना, भी आता ही होगा, शाम में निकाह है तुम्हारा। मुझे किसी भी किस्म का तमाशा नहीं चाहिए, नहीं तो जान से मार दूंगा। अकबर साहब गुस्से में यशवा के बाल पकड़ते हुए बोले, बाबा मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दे। यशवा को लगा आज उसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। बाबा छोड़ दे मेरी प्यारी बहन को, मैं समझाता हूँ, समझ जाएगी। बिलाल जो अभी घर आया था अपने कमरे में जा रहा जब अकबर साहब और यशवा की आवाजें सुनाई दी। अच्छे से समझा दो उसको बिलाल, मुझे किसी भी किस्म का शोर शराबा नहीं सुनना, नहीं तो मैं इसको जिंदा दफन कर दूंगा और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं होगा। जैसे इसकी माँ को निकाला है अपनी जिंदगी से, इसे भी निकाल दूंगा। आई समझ, बेहतर यही है कि जो कहा है वो करो। अकबर साहब यशवा को सोफे पर फेंकते हुए बोले, डैड आप जाएं, मैं बात करता हूँ अपनी गुड़िया से। बिलाल तंज करते हुए बोले, हाँ तो बताओ, शादी करनी है या नहीं, या फिर मरने के इरादे हैं? बिलाल बेड पर यशवा के सामने बैठता हुआ बोला, भाई मेरी अभी उम्र ही क्या है, आप खुद देखें, प्लीज अभी शादी नहीं करनी। आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज आप बाबा से बात करें, वो आपकी सुन लेंगे, प्लीज भाई। यशवा रोते हुए बोली, मेरी जान, आज नहीं तो कल शादी करनी है ना, अभी प्यार से समझा रहे हैं तो कर लो, नहीं तो मार कर समझाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मार कर समझाया जाए। आखिरकार तुम बहन हो मेरी, सगी नहीं पर मैंने तो दिल से माना है ना बहन। चलो जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ। बिलाल उसको ऐसे धमका रहा था जैसे प्यार कर रहा हो। भाई एक बार प्लीज, आखिरी बार मेरी बात सुन लेना, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज भाई, बात करे ना बाबा से। यशवा बिलाल के हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, तुम्हारी आज सुल्तान से शादी है और इसी से होगी, और ये शादी एक डील के एवज हो रही है, क्योंकि हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, पैसों की जरूरत है मेरी प्यारी बहन, तो तुम्हें कुर्बानी देनी है। आई समझ? और हाँ एक और बात, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद। अब तुम उधर ही रहोगी, यहाँ के दरवाजे खुद पर बंद करके जाना, क्योंकि बिलाल तुम्हें वापस यहाँ कभी नहीं आने देगा। तो प्लीज अपनी ये खूबसूरत शक्ल और बदसूरत नसीब लेकर वापस ना आना मेरी प्यारी बहन। बिलाल उसके हाथों से अपने हाथ निकालकर उसका चेहरा थपथपाता हुआ बोला, भाई आपने और बाबा ने मेरा सौदा किया है, मतलब मुझे बेचा है? यशवा बेयकीनी की कैफियत में बिलाल की तरफ देखकर पूछा, क्या कोई बाप या भाई अपनी बहन बेटी का सौदा कर सकते हैं? ओ प्लीज, ये मेलो ड्रामा नहीं चलेगा, मुझे बेचा है, बस पैसों की जरूरत थी इसलिए ये किया है, अब रोना धोना बंद करो, सुल्तान आता ही होगा। बिलाल ये कहते साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गया। मेरे साथ ही क्यों ये सब हो रहा है? पहले बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, बाप के होते हुए मैं यतीमों वाली जिंदगी गुजारी, भाई के होते भी हर वक्त डर लगा रहे, कोई कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ। अल्लाह, मैं इन सबको कभी माफ नहीं करूंगी, क्यों अल्लाह मेरे साथ, क्यों ये सब? यशवा रोते हुए जमीन पर बैठ गई, अल्लाह से पूछने लगी, हाल बेटा सब खैरियत? आप अकेले वापस आए हो, बाकी सब कहाँ हैं? सहला बेगम जो जन्नत और बुरहान को ड्राइंग रूम में अभी लेकर आई थी, सामने से यजदान को आते देखकर सवाल किया। जो कोट हाथ में पकड़े हुए आ रहा था, उसका चेहरा बता रहा था वो सुकून चाहता है, वो शदीद थका हुआ था। जी बाबा और शाजिल ऑफिस चले गए, शाम में आएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं वापस आ गया। शाजिल बुरहान का गाल चूमता हुआ बोला, जो आंखें मटका मटका कर इधर उधर देख रहा था। अच्छा चलो तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं इन दोनों की मालिश कर दूं। सहला बेगम यजदान की गोद से बुरहान को लेते हुए बोली, ओके अम्मी। यजदान कहते साथ ऊपर की तरफ बढ़ गया। सहला बेगम ने एक चीज पर गौर किया, वो ये थी कि यजदान ने सिर्फ बुरहान को प्यार किया, लेकिन एक नजर जन्नत को देखना मुनासिब नहीं समझा। इस बात का दुख हुआ था। अरूप तुम हो ना यार, ये सच में तुम हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा रूप। यशवा जो कमरा सेट कर रही थी यजदान की आवाज सुनकर चौंक गई। यजदान जो भी अपने कमरे में दाखिल हुआ था, यशवा को अरूप समझ बैठा, क्योंकि यशवा ने अरूप के कपड़े पहने हुए थे। यजदान तो क्या कोई और भी देखता तो पहली नजर में यही लगता, ये यशवा नहीं अरूप है। यजदान मेरी बात सुने, मैं अरूप। यशवा भी यजदान की गलत फहमी दूर करती, यजदान ने फौरन से यशवा को गले लगा लिया। इतनी जोर से हक किया, यशवा को लगा आज उसकी कमर की हड्डियां चटक जाएंगी। शुक्र है अरूप तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरी हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं मैं। यजदान यशवा की गर्दन में चेहरा दिए बिना रुके बोले जा रहा था, यजदान मेरी बात। यशवा ने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन यजदान कुछ सुनने के मूड में नहीं था, और यशवा बिल्कुल नहीं चाहती थी यजदान इसको अरूप समझकर अपनी मोहब्बत निछावर करे। क्या हो गया रूप तुम्हें? मैं तुम्हें बस प्यार। यशदान यशवा को मुसलसल नदामत करते देखकर बोला, लेकिन अचानक अरूप की जगह यशवा को देखकर चुप कर गया। यहाँ तो अरूप थी, आप कैसी आई यहाँ? यशदान यशवा को बाजू से दबोचते हुए बोला,
यज़दान वो अरूप नहीं थी, मैं थी। मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। यशवा अचानक से यज़दान को गुस्से में देखकर बोली, तुमने अरूप के कपड़े किससे पूछकर पहने? यज़दान चीख कर बोला। यज़दान मेरे पास कपड़े नहीं थे, पहले मैं हानि के पहन रही थी। आज भी यूं ही गई थी, मुझे कपड़े चाहिए थे तो मैंने ये पहन लिए। यशवा ने अटकते हुए अपनी बात कही। वो यज़दान के गुस्से से पहले ही डरी हुई थी। सुबह वाली इंसल्ट भी उसको याद थी। कैसे यज़दान ने अरूप की चेयर पर उसे नहीं बैठने दिया था। अब तो फिर उसने कपड़े पहने थे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं तुम्हारे पास कपड़े हैं या नहीं। मैंने ये पूछा तुमने ये कपड़े किससे पूछ कर पहने हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कपड़े पहनने की? यज़दान यशवा को बालों से पकड़ता हुआ बोला। इस टाइम वो टीपू का गुस्सा शायद यशवा पर उतारा था, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी। यज़दान प्लीज छोड़ दे, मुझे पेन हो रही है। प्लीज आप नहीं मारना, सुल्तान भी मुझे मारता था। अब मैं और मार नहीं खा सकती। यज़दान प्लीज नहीं, मुझे भी दर्द होता है, नहीं मारना। यज़दान, यशवा ये कहते साथ ही यज़दान की बाहों में झूल गई। यज़दान गुस्से में जरूर था लेकिन उसका मकसद यशवा को डराना था, मारना नहीं। लेकिन यशवा का ऐसा रवैया देखकर यज़दान समझ गया वो अपने पहले शौहर की बात कर रही है जो उस पर जुल्म करता था, मारता था। सुल्तान एक दरिंदा सिर्फ इंसान था जो दिन रात यशवा पर जुल्म करता था। अम्मी अम्मी अम्मी, आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आए, कहाँ हैं आप? यज़दान यशवा को गोद में उठाकर बेड पर लिटाया और अपनी माँ को आवाज़ें देने लगा। बेटा क्या हुआ है? सहला नीचे में यहाँ से गुजर रही थी, तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ आई। सादी बेगम जो कपड़े लेकर अपने कमरे में जा रही थी, यज़दान की आवाज़ सुनकर यहाँ आ गई। ताई अम्मी यशवा को देखे, पता नहीं क्या हो गया। यज़दान सादिया बेगम का ध्यान बेड की तरफ करवाता हूँ बोला, क्या अल्लाह खैर? यज़दान, इसको क्या हो गया? इसका रंग कितना पीला पड़ रहा है। बेटा जल्दी से सकीना को बुलाओ ताकि वो फैमिली डॉक्टर को कॉल करे। सादिया बेगम कपड़े सोफे पर रखती फौरन से यशवा के पास बैठते हुए बोली जो होशो हवास से बेगाना थी। जी ताई अम्मी कहते ही यज़दान बाहर की तरफ भागा। यशवा आंखें खोलो बेटा, क्या हो गया है मेरे बच्चे को? आंखें खोलो। सादिया बेगम यशवा के चेहरे पर पानी की चंद बूंदें डालते हुए बोली, सकीना मेरे कमरे में डायरी पड़ी, वहां पर डॉक्टर का नंबर लिखा है, आप प्लीज कॉल करें। सादिया बेगम यज़दान और सकीना को अंदर आते देखकर फौरन से बोली, बेगम साहबा एक बात कहूँ, मुझे लग रहा है बहू बेगम के यहाँ खुशखबरी है। मैंने आज इनको गैग करते हुए भी देखा था। किसी गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएं। यशवा को अंदाजा नहीं अंडा नहीं पसंद, लेकिन आज सबके साथ वो पहले बार नाश्ता कर रही थी तो इसने खा लिया। लेकिन बाद में क्या शुरू हो गई, सकीना ने देख लिया था जिसकी वजह से वो बात को कोई और रुख दे गई। सकीना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जाओ उस डायरी में डॉक्टर फौजिया का नंबर भी लिखा होगा, मेरी दोस्त, उनको कॉल करके बुलाओ। सादिया बेगम फौरन से बोली, नहीं ताईजान, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही बेहोश हो गई। यज़दान को समझ ना आए वो क्या कहे। वो ये भी नहीं बता सकता था, उससे डर कर वो बेहोश हुई है। यज़दान, इन बातों में औरत को ज्यादा पता होता है, तुम बाहर जाओ और सहला को भेजो। सादिया बेगम यज़दान को हुक्म देते हुए बोली, जी ताईजान। यज़दान का दिल कर रहा था सकीना बेगम का कुछ कर दे जिनकी वजह से सब गलत समझ रहे थे। वीकनेस की वजह से बेहोश हुई है सादिया, तुम्हारी बहू, और स्ट्रेस भी लिया है। और रही खुशखबरी की बात, तो वो दिन भी आएगा। डॉक्टर फौजिया अरूप को चेक करते बोली, इंशाल्लाह जरूर ये दिन भी आएगा। सादिया बेगम दिल से दुआ देते हुए बोली, चलो मैं चलती हूँ, ये मेडिसिन दे देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर फौजिया अपना बैग उठाते हुए बोली, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आऊँ। सादिया बेगम डॉक्टर फौजिया के साथ खड़ी होते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, सब ठीक है? सहला सादिया बेगम को बाहर आता देखकर बोली, देखा बीबी जी, मैंने ठीक कहा था ना। अभी सादिया बेगम कुछ कहती सकीना बोल पड़ी, तुमने बिल्कुल गलत कहा है, वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है। तुम्हारे वजह से मुझे यज़दान के सामने शर्मिंदगी हुई। वो कह भी रहा था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया। सादिया बेगम सकीना बेगम की क्लास लेते हुए बोली, बेगम साहिबा, मुझे लगा यही बात होगी, इसीलिए कहा। सकीना आहिस्ता से बोली, अच्छा जाओ सकीना, अपना काम करो जाकर, और हाँ, यशवा के लिए सूप बना दो। सहला बेगम ने सकीना का ध्यान काम की तरफ लगाया, नहीं तो वो यही बात लेकर बैठ जाती। जी मैं बना देती हूँ, कहते साथ ही सकीना किचन की तरफ बढ़ गई। मतलब हद है, कोई ऐसे भी बेहोश हो सकता है, सिर्फ डराया ही तो था। मैं कौन सा खा गया था आपको जो आप बेहोश हो गई? यजदान यशवा के सामने बैठा बोल रहा था, जो अभी भी खनूदगी में थी। वैसे तो बहुत बहादुर बनती, ठीक है मेरी गलती थी, लेकिन इतनी भी नहीं। बस गुस्सा आ गया था और उधर आप पर गया। यजदान खुद से बातें कर रहा था, ये शायद दिल को मुतमईन कर रहा था कि उसने यशवा के साथ गलत नहीं किया, लेकिन उसका ज़मीर कह रहा था गलत नहीं, बहुत गलत किया। मतलब जब आपको गुस्सा आएगा तब तक मैं अपनी इंसल्ट करवाऊंगी। यशवा जो आंखें बंद किए लेटी थी, यजदान के आखिरी जुमले का जवाब देना मुनासिब समझा। आप अगर जाग गई हैं तो ऐसे आंखें बंद किए क्यों लेटी थी? यजदान उसके अचानक पूछे गए सवाल पर हड़बड़ाया और बात बदल दी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं यजदान, पर एक बात, आइंदा अगर कभी मैं बेहोश हो जाऊं तो कभी अपने बेड पर मत लिटाई, क्योंकि ये मेरी जगह नहीं है।
यशफा खुद को यज़दान के बेड पर लेटा देखकर बेख्तियार बोली। वो वाली बात याद आई जब यज़दान ने बेड पर बैठने से मना किया था। यशफा मेरी बात सुने आप। अभी यज़दान अपनी बात मुकम्मल करता दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है, आ जाए। यशफा बेड के करीब खड़े होकर बोली। बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? सहला जन्नत और बुरहान को बेड पर बिठाते हुए बोली। आंटी, मैं अब ठीक हूँ। यशफा पाँव में जूता पहनते हुए बोली। ये दोनों रो रहे थे, इसलिए तुम्हारे पास ले आई, मालिश कर दी है। जब नहलाना होगा मुझे बता दे, मैं इनको शावर दिलाऊं। तुम मत करना, तुम्हारी तबीयत खराब है। सहला बेगम यशफा के सर पर प्यार देते हुए बोली। आंटी, अब मैं ठीक हूँ, करवा लूंगी, आप बेफिक्र हैं। यशफा उनकी मोहब्बत देखकर प्यार से बोली, जो हर बात में उसका साथ देती थी। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। सकीना सूप लेकर आएगी, याद से पी लेना। ओके यजदान, आप उधर ही है ना, बच्चों को आप देख लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी। सहरा बेगम यजदान से बोली, जिसका सारा ध्यान बुरहान पर था। ओके अम्मी। यजदान जवाब देकर फिर बुरहान की तरफ देख रहा था, जो जन्नत को बैठे देखकर अपने हाथ पैर चला रहा था। आंटी, आप कल मेरे साथ। सहला बेगम यजदान से बोली, जिसका सारा ध्यान बुरहान पर था। ओके अम्मी। यजदान जवाब देकर फिर बुरहान की तरफ देख रहा था, जो जन्नत को बैठे देखकर अपने हाथ पैर चला रहा था। आंटी, आप कल मेरे साथ मार्केट चलेंगी, मुझे कपड़े लेने। मेरे पास कपड़े नहीं है। यशवा ने यजदान के सामने ये बात करना मुनासिब समझा। वो उसकी जिम्मेदारी है, ना कि घर वालों की। तो बेटा, आप यजदान के साथ जाएं। यजदान कल आपको उसको लेकर जाइएगा। सॉरी बेटा, मुझे इस बात का याद ही नहीं रहा, हालात आपके सामने थे। सहरा बेगम को अजीब लगा कि यशफा खुद कपड़ों का कह रही। ये ख्याल उनको पहले क्यों नहीं आया। आंटी, आप माजरत ना करें, कोई बात नहीं, हो जाता। यशफा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था सहला बेगम सॉरी करे। कल आप चली जाना यस्तान के साथ, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेना, और जन्नत के कपड़े भी ले आना, वो भी 8 माह की हो गई, कपड़े छोटे हो रहे। सहला बेगम यस्तान का ध्यान जन्नत की तरफ करवाते हुए बोली। शायद अब कुछ बोल दे, लेकिन यस्तान ने अब भी कुछ नहीं बोला। वो सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। जी आंटी। यशवा ने बुरहान को गोद में उठाया, जो कब से उसके पास आने के लिए बेचैन था। चलो अब मैं चलती हूँ, सहला बेगम कहते साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गई, लेकिन दरवाज़ा बंद करना ना भूली। कल आपने मार्केट कितने बजे जाना है, मुझे बता दें, ताकि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँ। यस्तान अपना फ़ोन पॉकेट में रखता हुआ बोला। मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं। यशवा बुरहान को फीड करवाते हुए बोली। क्या मतलब? अभी आपने अम्मी के सामने बोला आपको जाना है। यस्तान हैरान हुआ। अभी कह रही थी कपड़े नहीं है, अब कह रही है जाना नहीं है। मुझे आंटी के साथ जाना था, आपके साथ नहीं। वो अपने इर्द गिर्द चादर ठीक करते हुए बोली। क्यों, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? आर्गुमेंट करने में मज़ा आने लगा था आज पहली बार, यस्तान को पता नहीं। यशवा जन्नत को अपने पास आने का इशारा कर रही थी, जो पिंक फ्रॉक पहने बैठी हुई देख रही थी। आप कल तैयार रहेगा, मैं 12 बजे तक आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। बच्चों को भी साथ लेकर जाना है, इनकी भी आउटिंग हो जाएगी। यजदान ने ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वो जानता था यशवा का मूड ऑफ है। हेलो शाजिल, कैसे हैं आप, और यहाँ क्या करें? फरवा जो भी यूनी से बाहर आई थी, शाजिल को बाहर गाड़ी के बोनट के साथ टेक लगाकर खड़ा देखकर फौरन उसके पास आई। हाँ फरवा, मैं हानि को लेने आया था। टाइम तो यही बताया था, बट अभी तक आई ही नहीं। शाजिल सीधे हाथ में एक पहनी घड़ी पर टाइम देखता बोला। अरे आज आप हानिया का इंतजार ही करें, क्योंकि वो अभी बाहर नहीं आएगी। फरवा हंसते हुए बोली। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। शाजिल को फरवा की दिमागी हालत पर शक हो। अरे मैं आपको बताती हूँ ना, हानि और आसिम आज काफी अरसे के बाद मिले हैं ना, तो उनको टाइम का पता नहीं चला होगा। आज हानि और आसिम ने कोई क्लास भी नहीं ली। फरवा शाजिल के दिल में हानिया के लिए नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रही थी। फरवा, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है, जब दो दोस्त काफी अरसे के बाद मिलते हैं तो बातों में टाइम का एहसास नहीं होता। शाजिल फरवा की बात का जवाब दे रहा था, लेकिन नज़र मुसलसल यूनिवर्सिटी के गेट पर थी कि कब हानिया बाहर है। जी जी, ये बात तो आपकी ठीक है। अरे देखिए, वो दोनों भी आ गए। अभी फरवा मजीद कुछ कहती कि सामने से आसिम और हानिया आते हुए दिखाई दी। ये मंजर अगर किसी को नागवार गुजरा था तो वो शाजिल था। शाजिल शक नहीं करना चाहता था, लेकिन फरवा की जबान से निकले गए अल्फाज इस बात की यकीन दहानी करवा रहे थे कि वो दोनों साथ थे। शाजिल शक्की मिजाज इंसान नहीं था, लेकिन फरवा के बोले गए जुमले अपना काम कर गए थे। अस्सलाम वालेकुम। हानिया ने शाजिल के पास आती उसको सलाम किया। वालेकुम सलाम। शाजिल ने सलाम का जवाब देते हुए गाड़ी की चाबी पॉकेट से निकाली। हानिया, भी मैं और शाजिल तुम्हारी ही बात कर थी, फरवा नरम लहजे में बोली, जैसे शाजिल के साथ बैठकर इसकी तारीफ कर रही थी। आसिम सब कब से खामोश खड़ा तमाशाई बना हुआ था। हमें देर हो रही है फरवा, फिर मिलेंगे। शाजिल का दिल हर चीज से अचाट हो गया था, तो फौरन उस जगह से जाना चाहता था। इसको क्या हुआ, काफी गुस्से में लग रहा था। आसिम ने शाजिल की गाड़ी की तेज रफ्तार को देखते फौरन से पूछा। फरवा आग लगाए और शोला ना भड़के, ऐसा हो ही नहीं सकता। फरवा आसिम के कंधे पर हाथ रखते बोली। क्या मतलब? कौन सी आग, कौन सा शोला? आसिम उसका बाजू साइड पर करते हुए बोला। मतलब तुम लोगों ने आने से पहले मैंने शाजिल को कहा तुम्हारी और हानिया की दोस्ती है, लेकिन ये बात यकीन में तब बदलेगी जब तुम दोनों साथ आए।
اب جو بھی ہے شازل ہے تو مشرقی مرد جو یہ بات بالکل برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کوئی دوست، اسی لیے غصے میں ہے۔ اب تم پلان بی پر کام کرو، جلدی نکالو ہانے کو شازل کی زندگی سے تاکہ میں اس کی زندگی میں انٹر ہو سکوں۔ فروا اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی بہت نیک کام کیا۔ شازل کچھ ہوا ہے کیا؟ میں آپ کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہانے شازل کو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ کر بولی، نہیں میرا موڈ بالکل ٹھیک ہے۔ شازل نے ہانے کی طرف دیکھے بغیر بات کی اور یہ بات ہانے نے محسوس کی۔ اگر موڈ ٹھیک ہے تو میری طرف دیکھ کر بات کریں۔ ہانے شازل کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی جو اس کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ بولا کیا کہنا ہے؟ شازل نے بیزارت والی لہجے میں بات کی۔ کچھ نہیں۔ ہانے کو شازل کے لہجے میں اپنی بیزارت محسوس ہوئی تو اس نے بھی کچھ نہ کہنا ہی مناسب سمجھا۔ شازل نے بھی دوبارہ بلانا نامناسب سمجھا۔ فروا کی گئی بات شازل کے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ بیٹا آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، یزدان آنے والا ہے۔ سہلا بیگم کی یزدان نے کال کر کے کہا تھا کہ یشفا اور بچوں کے پاس 10 منٹ میں پہنچ جائے، تو یشفا سے بولی وہ ریڈی رہے۔ جی آنٹی ابھی بچوں کو کیا ہے، یہ دونوں سو گئے ہیں، بس میں ہونے لگی ہوں۔ یشفا سہلا بیگم کا دھیان بچوں کی طرف کرواتے ہوئے بولی، چلو جلدی تیار ہو جاؤ، میں تب تک بچوں کا فیڈر تیار کر دیتی ہوں۔ سہلا بیگم کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ شازل نے حویلی میں داخل ہوتے سلام کیا۔ شازل کے پیچھے ہانیہ بھی داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سعدیہ بیگم جب ڈرائنگ روم میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، شازل کے سلام کا جواب دیا۔ ہانی بیٹا کیا ہوا ہے؟ سعدیہ بیگم ہانیہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سوال کر لی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہانیہ شازل کے ساتھ باہر جائے اور داس واپس آئے۔ کچھ نہیں تائی امی، ہانیہ اپنے آنسو حلق سے اتارتے ہوئے بولی۔ امی میں کمرے میں جا رہا ہوں، میری چائے بھی بھجوا دیجیے گا۔ شازل کو لگ رہا تھا اسے اب اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ دماغ میں بار بار فروا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اچھا بیٹا جاؤ۔ آپ ہانی بیٹا آپ بھی جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ سعدیہ بیگم ہانی کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ کیا میں اوور تو نہیں لگ رہی؟ یشوا خود کو آئینے میں دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ اس نے بلیک کلر کا پلین سوٹ پہنا تھا جو ہانیہ نے دیا تھا، جو اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پنک کلر کا لائٹ سا گلوز لگایا ہوا تھا، بال ٹیل پونی میں قید کیے تھے۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، آسمان سے کوئی پری اتری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ بی بی جی صاحب آگے آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ پلازما یشوا کے روم میں آتے ہوئے یزدان کے آنے کی اطلاع دینے لگی۔ آپ جنت کو لے جائیں، میں برہان کو لے کر آئی ہوں، یشوا کہتے ساتھ ہی چادر لینے لگی۔ شازل میں آپ کے کپڑے نکال دوں؟ شازل جو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا، ہانے کے بات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ شازل کیا ہوا ہے؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، صبح تک آپ کا موڈ بالکل ٹھیک تھا۔ ہانیہ شازل کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ ہانیہ میرا بھی بات کرنے کا موڈ نہیں، میری آج میٹنگ تھی جس وجہ سے میں بہت تھکا ہوں، پلیز ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ شازل اپنا ہاتھ ہانیہ کی گرفت سے نکالتا ہوا بولا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے، ہانی کو سچ میں لگا شازل کا موڈ بزنس میٹنگ کی وجہ سے آف ہے۔ یشفا برہان کدھر ہے؟ یزدان ملازمت سے جنت کو پکڑتا ہوا بولا۔ پہلی بار تھا جب یزدان جنت کو گود میں لے رہا۔ صاحب وہ آ رہی ہیں، ملازمہ کہتے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جنت ایک بات بولو، تم اتنی کیوٹ سی ہو، تمہاری ماما کس پر چلی گئی؟ یزدان جنت کا گال چومتے ہوئے بولا۔ جنت سچ میں بہت کیوٹ اور صحت مند سی بچی تھی، اور 8 ماہ کی تھی مگر دکھنے میں 1 سال کی لگتی تھی۔ صحت مند سی گولو مولو سی ڈول لگ رہی تھی وہ شازل کو اس وقت۔ اچھا جنت کان میں بتا دو، نہیں مطلب ہر وقت تمہاری ماما روتی رہتی جیسے اس کام کے پیسے ملتے ہو۔ جنت یزدان کی بات پر کلکاریاں مار کر ہنس رہی تھی جیسے اس بات پہ متفق ہوں۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ یزدان ابھی جنت سے مزید بات کرتا کہ یشوا کی آواز سنائی دی۔ جی لیٹ تو ہیں آپ؟ یزدان گھڑی پر وقت دیکھتا ہوا بولا۔ محترمہ پورے 20 منٹ لیٹ تھی۔ اب آپ چلے گاڑی میں بیٹھے؟ یزدان گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ یشوا نے برہان کو گود میں اٹھایا۔ آپ برہان کو اٹھا لیں، میں جنت کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں۔ یزدان گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ دونوں بچوں کے ساتھ یشوا کو مشکل ہوگی، اسی وجہ سے جنت کو اپنی گود میں بٹھا لیں۔ آپ کو ڈرائیونگ کرتے وقت مشکل ہوگی، یہ تنگ کرے گی، یشوا برہان کو سنبھالتے بولی جو نیند میں بے چین ہو رہا تھا۔ نہیں کرتی، آپ بے فکر رہیں، یزدان جنت کا گال چومتے بولا جو سیرنگ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یشوا کے سامنے یزدان نے پہلی بار جنت کو ایسے پیار کیا تھا۔ سر ٹیپو اور ٹیپو کا گینگ ابھی بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن ابھی تک آپ کا نام نہیں لیا۔ شمس بلال کو موجودہ حالات کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی ہو جائے شمس، یزدان سچ تک پہنچ جائے گا، آخر اس کی محبوب بیوی مری ہے۔ مجھے کچھ بھی کر کے یشوا تک پہنچنا ہے۔ بلال جو آنکھیں بند کیے چیئر پر جھول رہا تھا اپنا آگے کا پلان بنانے لگا۔ سر اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ شمس جانتا تھا اس کے باس کے دماغ میں کوئی خرافاتی پلان چل رہا ہے۔ سب بتاؤں گا شمس، وقت آنے پر سب بتاؤں گا، ابھی مجھے شاپنگ مال جانا ہے تو میں نکل رہا ہوں، تم سب سنبھال لینا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ اوکے سر۔ شمس بلال کا بہت ہی وفادار آدمی تھا جو ہر غلط کام میں ملوث تھا۔ یزدان گاڑی شاپنگ مال کے پارکنگ ایریا میں پارک کر رہا تھا۔ آپ نے بچوں کی
प्राइम रखवाई थी गाड़ी में। यजदान अपना वॉलेट पॉकेट में रखते हुए बोला। नहीं, वो तो मैं याद भूल गया था। यशवा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। क्या आप इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकती? यजदान को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मतलब ये तो जरूरी चीज थी ना जिसको वो घर छोड़ आई थी। वो बच्चों के फीडर भी घर रह गए, मैं जल्दी में लाना भूल गई। यशवा ने डरते डरते आधा सच और बता दिया। क्या आप पागल तो नहीं? मतलब आप शॉपिंग के लिए बाहर आ रही और बच्चों की चीज घर बुलाई? यजदान गुस्सा नहीं करना चाहता था लेकिन उसको आ रहा था। सॉरी, यशवा आंखों में आंसू लिए बोली। प्लीज अब रोना नहीं, मैं जन्नत को उठा लूंगा, आप बुरहान को पकड़ लेना। यजदान कहते साथ ही प्लीज अब रोना नहीं, मैं जन्नत को उठा लूंगा, आप बुरहान को पकड़ लेना। यजदान कहते साथ ही गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकले। जन्नत, तुम्हारी मामा सच में पागल है। क्या बनेगा मेरा और तुम लोगों का? यजदान ने फिर से जन्नत के कान में सरगोशी की जिसको जन्नत ने बखूबी सुना। अस्सलाम वालेकुम हानिया, मैं आसिम बात कर रहा हूँ। हानिया जो आंखें बंद की लेटी थी मोबाइल की बेब फौरन से जागी। वालेकुम सलाम जी, आसिम भाई पहचान लिया। हानिया के मोबाइल में आसिम ने पहले ही नंबर सेव कर दिया था लेकिन उसने अपना नाम लिखा था, साथ में भाई जैसा लफ्ज नहीं लगाया था। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? आसिम ने नहायत मासूमाना अंदाज में मैसेज किया। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, आपको कोई काम था? मुझे हानिया को लगा शायद आसिम को कोई काम है इसीलिए मैसेज किया। वो मुझे फरवा का नंबर चाहिए था। आसिम को बर वक्त कोई बहाना ना सूझा तो यही कह दिया। मैं आपको उनका नंबर नहीं दे सकती उनकी इजाज़त के बगैर। हानि को फरवा का नंबर देना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है तुम्हारी इजाज़त के बगैर, और तुम उसका नंबर देते वक्त इतना डरी हो। आसिम ने ये बात दिल में सोची लेकिन कहा नहीं। ओके हानिया, मैं समझ सकता हूँ, चलें फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। आसिम ने बात खत्म की। वो जानता था हानिया नंबर नहीं देगी। ओके अल्लाह हाफिज अलविदाई कलमात कहते साथ वापस आंखें मूंद कर लेट गई। शाजिल का इंतजार करने लगी जो कब से बाथरूम में गया था। शाजिल जो रूफ शावर के नीचे खड़ा अपना गुस्सा ठंडा कर रहा था, वो हानि का मेल बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पहले बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं, बाद में आपकी कर लेंगे, लेकिन प्लीज एक ही दफा जो लेना है वो ले लें। बच्चों के साथ रोज रोज बाहर निकलना ठीक नहीं लगता। जिस दिन शॉपिंग मॉल के अंदर एंटर होते हुए बोला। जी ठीक है, यशवा कहते साथ ही किड्स सेक्शन की तरफ बढ़ गई। जन्नत, ये वाला ड्रेस अच्छा है ना? यस्तान ब्लू कलर की फ्रॉक जन्नत को दिखाता हुआ बोला जो उसको मजे से सुन रही थी। यस्तान जन्नत की शॉपिंग खुद कर रहा था। वो जानता था यशवा बस जरूरत की चीजें लेगी जन्नत की। ये बुरहान के लिए ड्रेसेस ठीक है, आप इनका बिल करवा लें। यशवा यशवा 5 से 6 ड्रेसेस यजदान को दिखाते हुए बोली। और तो कुछ नहीं लेना? यजदान यशवा से ड्रेसेस लेते हुए बोला। जी कुछ आगे से लेते हैं। यशवा बुरहान को कंधे से लगाते हुए बोली जो रोने की तैयारी पकड़े हुए था। अच्छा, मैंने जन्नत की शॉपिंग कर ली है, सामने काउंटर पर बिल हो रहा है, आप बुरहान के लिए बस ले लें। यजदान काउंटर की तरफ देखते हुए बोला। उसने जन्नत के लिए हर किस्म के कपड़े लिए थे, तकरीबन 20 ड्रेसेस से ज्यादा थे। वो सब जो काउंटर पर कपड़े पड़े हैं वो जन्नत के हैं? यशवा हैरान होते बोली। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है यजदान? इसके हैरान को लहजे पर चोट करता बोला। इतने ज्यादा ड्रेसेस लेने की क्या जरूरत थी? यशवा ने सोचा था वो जन्नत के लिए बस जरूरत का सामान ले, लेकिन ये शख्स चाहता ही नहीं था वो इसका एहसान उतार सके। तुम अपने छोटे से दिमाग में ज्यादा ना सोचो, आगे लेडीज सेक्शन है, तुम जाओ अपने लिए ड्रेसेस लो, मैं ये सामान लेकर आता। यजदान मध्यम आवाज में बोला। ओके, यशवा कहते साथ ही लेडीज सेक्शन की तरफ बढ़ गई। अभी थोड़ा आगे ही गई थी कि सामने बिलाल किसी लड़की के साथ शॉपिंग करते हुए नजर आए। यशवा जो वहां से जाने लगी थी लेकिन उसकी बस बदकिस्मती की बिलाल देख चुका था। यशवा को बिलाल एक ही जस्ट में यशवा तक पहुंचा। मेरी बात सुनो यशवा। यशवा जो वहां से जाने वाली थी बिलाल की आवाज पर मुड़कर उसकी तरफ देखा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, मेरा रास्ता छोड़ दो। यशवा योगदार आवाज में बोली। क्यों शादी ज्यादा मालदार इंसान से कर ली है तुमने? बिलाल कमीनी सी मुस्कुराहट उछालते हुए बोला। मैं जो मर्जी करूं आपको इससे क्या? यशवा अंदर से डर रही थी कहीं यजदान ना आ जाए। अगर यजदान ने बिलाल को देख लिया तो वो क्या कहेगी? उसने तो बोला था उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अगर अपने बच्चों की खैरियत चाहती हो तो शराफत से कल 12 बजे इसी मॉल में आ जाए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बिलाल का अपना अगला शिकार मिल चुका था, अब देखना यह था कि बिलाल अपने प्लान में कामयाब होता है। चलता हो अपने बच्चों का खास ख्याल रखना, अगर ना आई तुम कल तो मुझे कुछ भी हो सकता है। बिलाल आखिर में धमकाना ना भूला। वो जानता था यशवा बचपन से डरपोक है। यहाँ पर यशवा सच में डर गई। वो एक माँ थी, माँ का दिल बच्चों के मामले में कमजोर होता है। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? यशवा जो बिलाल की बात सुनकर सख्ते में चली गई। यजदान के बुलाने पर होश में आई। नहीं, वो मैं आपका का इंतजार कर रही थी। यशवा को समझ न आई वो क्या बोली। चलो मैं आ गया हूँ, तुम जाओ शॉपिंग करो। यजदान जो जन्नत के शॉपिंग बैग गाड़ी में रखने गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। तुम्हारी हानि से कोई बात हुई? फरवा जो कब से आसिम को कॉल कर रही थी, बिल आखिर आसिम ने फोन उठा लिया।
हाँ हुई थी, मैंने उसे तुम्हारा नंबर मांगने के लिए कॉल की थी लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। आसिम जो सोकर उठा था मोबाइल पर परवा का नंबर देखकर बदमजा हुआ। अच्छा, अब तुमने उसको दिन के वक्त मैसेज नहीं करना, ओके रात के वक्त करना है यहाँ। जब वो अपनी फैमिली के पास होगी तब करना है। मैं भी एक हफ्ते के लिए वहां रहने जा रही हूँ तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। परवा अपना आगे का प्लान बताने लगी। ठीक हो गया, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे बाहर जाना है। आसिम का इस वक्त फरवा के खराफाती प्लान सुनने का कोई मूड नहीं था, इसीलिए झूठ बोलना मुनासिब समझा। ओके बाय, फरवा ने अलविदाई कलमात कहते साथ मोबाइल साइड। आ रही है तुम्हारी बर्बादी। हानिया डार्लिंग, फरवा बेड पर लेटते हुए बोली। हानि बेटा बाहर क्या कर रही हो? हानि जो लॉन में बैठी हुई थी सहला बेगम की आवाज पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ नहीं ताई अम्मी, हानिया अपनी जगह से खड़े होते बोली। अरे बैठी रहो, आज मेरी बेटी कुछ उदास लग रही। क्या बात है? सहला बेगम हानि को प्यार करते बोली जो आज पूछी हुई थी। नहीं ताई अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हानिया फौरन से बोली जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। शाजिल नाराज है क्या मेरी बेटी से? सहला बेगम हानिया के सर पर प्यार करते हुए बोली। उन्हें हानिया शुरू से ही बहुत पसंद थी, वजह थी उसकी मासूमियत। उसमें आम लड़कियों की तरह शेखी और शरारती हरकतें नहीं थी। पता नहीं ताई अम्मी कहते साथ ही रोने लगी। अरे इसमें रोने की क्या बात है हानिया बेटा, अगर वो नाराज है तो मना लो। सहला बेगम उसके आंसू साफ करते हुए बोली। मैंने पूछा था, वो कह रहे थे मीटिंग थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नाराज परेशानी के आलम में बोली। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम जाओ उसके पास और उसके गले लगकर एक हक करना, वो मान जाएगा। सहला बेगम जानती थी ऐसे छोटे छोटे मामलात होते रहते हैं, लेकिन इनको तरीके से हैंडल करना पड़ता है। ताई अम्मी हानिया सहला बेगम की बात सुनकर ब्रश करना शुरू हो गई। अरे मेरे बच्चा, तुम ऐसे ही लाल हो रही हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, कुछ भी हो जाए तुम कभी भी शादी से गफलत नहीं करोगी, और ना तुम लोगों की नाराजगी का किसी दूसरे शख्स को इल्म होना चाहिए, क्योंकि हमेशा तीसरा शख्स ही बर्बादी और जुदाई की वजह बनता है। सहला बेगम एक छोटी सी बात में उसको बहुत बड़ी बात समझा गई थी। जी ताई अम्मी हानि समझ गई थी वो क्या कहना चाह रही थी। चलो जाओ शाबाश, कमरे में जाओ। सहला बेगम चेयर से खड़े होते हुए बोली। जी आ जाएं, चलते हैं, चाय शाम हो गई, कहते साथ वो भी अपनी जगह से खड़ी हो। शॉपिंग हो गई, अब कुछ खा लेते हैं, मैंने ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया था। इस तरह गाड़ी में बैठता हुआ बोला। शॉपिंग तकरीबन हो गई थी, जैसे आपको ठीक लगे। यशवा को खुद भी बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मान गई। जन्नत और बुरहान दोनों सो रहे थे। पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का जंक फूड अच्छा है, वहाँ चलते हैं, कहते साथ ही गाड़ी जन से भगाई। क्या हुआ है बुरहान? बुरहान जो सो रहा था भूख लगने की वजह से गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इसको भूख लगी है, इसी वजह से रो रहा है। यशवा उसको कंधे से लगाते हुए बोली। इसको फीडर दे दे। यस्दान ने एक हाथ जन्नत पर रखा जो उसकी गोद में मजे से सो रही। फीडर लाना भूल गई थी, आपको बताया तो था। यशवा मुसलसल बुरहान को चुप करवा रही थी जो चीख चीख कर रो रहा था। आपको कुछ याद भी रहता है? एक तो यस्दान को बहुत भूख लगी थी, ऊपर से बुरहान का रोना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जल्दी में थी, भूल गया। यशवा को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो क्यों भूली? ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, घर जाकर खाना खाते हैं, गाड़ी में आपको इसको फीड नहीं करवा सकती। मेरा ब्लैक नहीं। यजदान बुरहान के सर पर हाथ रखते हुए बोला जो रोने की वजह से लाल हो गया। प्लीज जल्दी करिए, बहुत रो रहा है। यशवा जानती थी अगर बुरहान को वक्त पर दूध नहीं मिले तो वो रो रो कर गला खराब कर ले। एक दफा पहले भी वो ऐसे ही कर चुका था। बस 10 मिनट तक पहुंच जाएंगे, आप इसको तब तक चुप करवाएं। यजदान गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए बोला। शाजिल उठ जाए, रात के खाने का वक्त हो गया। हाने जो रूम में आई थी, लाइट ऑफ देखकर उसको अंदाजा हो रहा था कि शाजिल अभी भी सोया। थोड़ी देर और सोना है। शाजिल खनूदगी के आलम में बोला। आज वो बहुत ज्यादा थक गया था और कुछ परवाह की बात ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। क्या हुआ है आपको? हनी शाजिल के सीने पर सर रखते हुए बोली। शाजिल जो आंखें बंद किए लेटा था, अपने सीने पर बोझ महसूस करते हुए आंखें खोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शाजिल हानिया के गिर्द हिसार बनाता हुआ बोला। कुछ तो हुआ है। मुझे इग्नोर भी किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, गुस्सा भी किया, डांटा भी मुझे। हानिया तो तैयार बैठी थी कब वो शाजिल को बता सके उसने कितना गलत किया। अच्छा जी, मैंने ये सब कब किया? शाजिल को एहसास हो गया था उसने ज्यादा रिएक्ट किया, इसी वजह से वो हानि को मनाना चाहता। जी ये सब आपने किया। हानि शाजिल की आंखों में देखते हुए बोली। अब ऐसे गुस्से से देखोगी? शाजिल हानि को देखने के अंदाज पर बोला जो देख कर कम घूर ज्यादा रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही देखूंगी। हानि मजीद घूरते हुए बोली। सोच तो मेरे पास ही लेटी हूँ। शाजिल के ने कहते साथ टाइटली हक किया। आराम से मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। हानि चीख कर बोली। जान ऐसे कैसे टूटेंगी? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं। शाजिल हानि की गर्दन में चेहरा छुपाता हुआ बोला। आपको शर्म नहीं आती? छोड़े मुझे, नीचे सब खाने पर वेट कर रहे हैं। हानि खुद को शाजिल के हसार से निकालते हुए बोली। लेकिन मेरा तो तुम्हें खाने का मूड है। शाजिल इसको वापस खींचते हुए बोला। शाजिल ये क्या कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। हानि को सादी बेगम ने भेजा था कि वो शाजिल को जगा दे, खाने का टाइम हो गया। अब उसको लग रहा था उसने बहुत गलत वक्त पर उठाया।
کرنے دو ویٹ، آج نہ میں جاؤں گا اور نہ تمہیں جانے دوں گا، بس بات ختم، کہتے ساتھ ہی ہانے کو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کروایا۔ ہانے جانتی تھی اب شازل نہیں رکنے والا، تو خود اس کے حوالے کرنا ہی مناسب سمجھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔